Question number 7, page number 31. Now the question is, in the books of Charmi, for the following transaction, which account will you debit, credit? Okay, rules of debit, credit. Yani what we are going to do is, we are going to follow our format and do this 7th sum. Now, because हम ये पेज पे है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज हम 7th करेंगे, कल हम ये 8th करने वाले, जहाँ पे होमवर्क लिखा है वो होमवर्क नहीं होगा, वो हम कल लेक्चर में सॉल्व करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 5 आज तुमको होमवर्क में मैंने दिया है, इसके ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 to 20 यू हैव टू डू इट. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स go to our format. सर हाँ बोलो. आज फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखना था ना. हाँ, लेक्चर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर का देखना है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर पूरा थियरी चैप्टर है, तो और उसमें से तुम्हें लेक्चर देख के होमवर्क करना है. ठीक है? वो सेशन में नहीं चलेगा क्या? सेशन में वो आप नहीं पढ़ाओगे? नहीं, ओके. मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है ना, इसके लिए मैं सेशन में नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है? क्योंकि डुप्लीकेशन होगा ना, एक ही एक है. ओके, तो वीडियो लेक्चर देख लो, जो डाउट डिफिकल्टी होगा तो मुझे पूछ लेना. ठीक है ना? Yes. Okay, so let's start. The first one, started a business with a capital cash of 50,000. Now, what comes in business? What comes in the business? Cash comes in. So write cash comes in, underline cash. ये टू इफेक्ट्स का तुम्हें मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है. जितना तुम ये प्रैक्टिस करोगे, जितने तुम इस पे कॉन्फिडेंट होंगे, उतना तुम्हारे लिए जर्नल एंट्री इजी हो जाएगा. और जर्नल एंट्री अगर एक बार परफेक्टली आ गया तो पूरे अकाउंट सब्जेक्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. सो कैश कम्स इन. हु ब्रिंग्स दिस कैश? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, ओनर. सो ओनर इज द गिवर. Underline owner. Cash comes in, so cash account. Owner is the giver, so capital account. Cash account. Cash comes in real account. Owner is the giver. Personal account. Debit. Debit amount 50,000. Credit amount 50,000. Second one. Purchase goods of 10,000 from Akash. Now we purchase goods of 10,000 from Akash. So this question should come in your mind. What comes in? Goods comes in. Underline goods. Who is the giver? Akash is the giver. Underline this. Goods comes in purchase account. Akash is the giver, Akash account. Goods comes in purchase account, real, Akash. Personal. Goods comes in debit, what comes in 10,000. Akash is the giver, credit the giver 10,000.
Okay, now next transaction. Right now you don't need to write the question. I'm writing the question so that you can know what's the question and what are the effects. So आदिल तुम्हें question नहीं लिखना, okay? Sold goods of 8,000 to Gagan. So you have to analyze the transaction कि you are selling goods to Gagan. तो Gagan को ये goods मिल रहे हैं. So Gagan is the receiver. Underline Gagan. And goods goes out. Underline goods. Gagan account. Sold goods. So sales account. Personal. Real. Debit. Credit. Debit 8,000. Credit 8,000. Okay, next. Took goods of rupees 200 for personal use. Now ये goods कौन personal use के लिए लेके गया? मुझे बताओ. Owner. Owner, sir. Very good. So who is the receiver? Owner is the receiver. Goods goes. And goods goes out. Now underline owner account. Underline goods account. Owner is the receiver, so drawings account. Goods goes out which account? Sales account. Purchase account. ये जो ओनर है उसने ये जो गुड्स लिया वो उसने अपने शॉप से खुद विड्रॉ कर लिया, वो खुद लेके गया. तो ये कहाँ से लेके गया? अपनी शॉप में जो गुड्स उसने खरीदे थे, जितना परचेजेस था उसमें से ही ये कम हुआ. तो परचेज अकाउंट. इसमें सेल्स अकाउंट प्लीज मत यूज करना. ड्राइंग्स रियल drawings account, personal account, owner is the receiver and goods goes out real. Debit the receiver 200, goods goes out credit 200. Next. Sold goods of 2,000 to Dhara for cash. Now, will we record the name Dhara? No. आएगा यहाँ पे नहीं आएगा because यहाँ पे क्या दिया है? For cash. So what comes in? Cash comes in. Cash comes in. Now what goes out? Goods goes out. Underline cash. Underline goods. अब कैश कम्स इन तो कैश का हिसाब हम कैश अकाउंट में रखेंगे. गुड्स गोज आउट तो ये गुड्स को हम बेच रहे हैं, सो सेल्स.
cash is real, sales is also real, debit what comes in, credit what goes out, debit 2000, credit 2000. Purchased furniture of 5000 from Indraprastha Furniture Mart. So purchase furniture, so furniture comes in. Now, is this a cash or a credit transaction? Is this a cash or a credit transaction? Credit. Transaction. Plus Furniture Mart is the giver. Underline this. So furniture account. यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए we are using abbreviation. Otherwise तुम्हें पूरा नाम लिखना पड़ेगा in journal entry. Furniture comes in real account. Real account यानी what can come in, what can go out, what we can buy, what we can sell. Okay. IFM is a personal account, artificial person. Debit what comes in 5000, credit 5000. Gagan returned goods of rupees 400. मुझे इसके इफेक्ट्स बताओ प्लीज. गगन ने रिटर्न किया गुड्स, तो गुड्स क्या हो रहा है? In Gagan is the giver. Yes, goods are coming in and Gagan is the giver. Giver. Yes, very good. So goods comes in. Underline goods. Gagan is the giver. Underline Gagan. Goods. Now, what will be the name of account we'll be using over here? Sales return account. Sales, Sales return. sales return. Very good. Sales return का दूसरा नाम क्या है? Return inward. Sales inward. Returns inward. Return किया goods आ रहा है, so returns inward. So here we write sales return account, Gagan account. Sales return का दूसरा नाम है returns inward. Goods comes in real, Gagan personal, debit, credit 400, 400. Return goods of 300 to Akash. Tell me the entry. Tell me the effect. Akash is the receiver. Goods goes out. Goods goes. आकाश is the receiver. रिटर्न किया आकाश को, तो आकाश ने वो सामान ले लिया अपने हाथ में, तो हमने कहा आकाश is the receiver. Underline आकाश. Goods goes out. Underline goods. Akash account and Purchase return. purchase का दूसरा नाम क्या है? Return outward. Return outward account. मैं इसमें रिटर्न आउटवर्ड लिखता हूँ, तुम परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ही लिखना until unless स्कूल में ये करा है, बट ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, बिकॉज आगे जाके कुछ रेफरेंस बुक्स में, कुछ कोर्सेस में रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज होता है. दैट्स व्हाई अभी से मैं ये तुम्हें करा रहा हूँ. आकाश अकाउंट and return out, sorry, personal account and real account. Debit the receiver 300, credit what goes out 300.
opened an account in Bank of Nakshatra by depositing cash rupees 10,000. So cash 10,000 deposit किया तो cash goes out. ये तो पता चल गया. तो जो इफेक्ट पता चल जाता है उसको पहले लिख सकते हो. बट ध्यान रखना cash goes out always effect B, giver always effect B, income, gain, profit always effect B, that is credit. Okay, and over here bank is the receiver. We may also write the name of the bank. Okay, bank bank account, cash account, personal account, real account. Bank is the receiver, debit the receiver. Cash goes out, credit what goes out. Withdrew, important mark करो 10th को, important mark करो 10th को. Withdrew cash from bank for office expense 1500. इसमें फर्स्ट इफेक्ट आएगा ऑफिस एक्सपेंस incurred. Yes. फर्स्ट इफेक्ट आएगा ऑफिस एक्सपेंस incurred. No. Is wrong. Cash comes in. क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन बराबर पढ़ा नहीं. सर कैश कम्स इन आवे. हाँ. Cash comes. સૌથી પહેલા મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ પહેલા ક્વેશ્ચન બરાબર વાંચવાનું. તો ક્વેશ્ચન બરાબર વાંચવાનું means you have to read the question properly. तुम्हें क्वेश्चन पहले बराबर पढ़ना है. Withdrew cash from bank for office expense, यानी ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए कैश विड्रॉ किया. अभी तक ऑफिस एक्सपेंस इनकर किया नहीं, तो हाथ में क्या आ गया? कैश आ गया. सो कैश कम्स इन. अंडरलाइन कैश. इफ यू राइट ऑफिस एक्सपेंस इनकर्ड तो गलत हो जाएगा, बिकॉज कहा है कि हमने कैश विड्रॉ किया, ऐसा नहीं कहा है कि खर्चा किया. इज दिस क्लियर? प्लीज टेक केयर इन एग्जाम. ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, नॉट टू वरी. होमवर्क पे होमवर्क दे करूंगा तुम्हें ताकि प्रैक्टिस होता रहे. अगर तुम सिंसियरली होमवर्क करोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. ओके, कैश कम्स इन. बैंक से पैसा गया तो बैंक इज द गिवर. अंडरलाइन. सो कैश अकाउंट, bank account. Cash account, it is your real account. Bank account, personal account. Cash comes in, debit what comes in 1500. Bank is the giver, credit the giver 1500. Proceed now. Mark 11, extremely important again. It will come in exam, extremely high chances. It will come in my exam also. गलती किया तो मैं 1000 बार लिखने दूंगा. रेडी रहना. ओके, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 350. किसका लाइफ? ओनर का. ओके, सो ओनर ओनर का लाइफ का इंश्योरेंस होता है. किसी इंसान के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस होता है, कोई कंपनी या बिजनेस के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस होता नहीं है. तो ये ओनर का पर्सनल खर्चा है. ओके, अगर ओनर मर गया तो जितना भी इंश्योरेंस का पैसा है, क्या वो बिजनेस को मिलेगा या ओनर के सक्सेसर को मिलेगा? ओनर के सक्सेसर. तो ये ओनर के
ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है जो बिजनेस में से पे कर रहे हैं। सो बिजनेस में से कैश गया, पर ये कैश कौन लेके जा रहा है? ओनर लेके जा रहा है। तो इफेक्ट ए आएगा, ओनर इज द रिसीवर। बिजनेस किसको पहचानता है? बिजनेस ओनर को पहचानता है, और बिजनेस में से पैसा ओनर ने खुद के लिए निकाला, फिर उसने लाइफ इंश्योरेंस भरा, उसने वो पैसे से घर के लिए कुछ सामान खरीदा, उसने वो पैसों से बच्चों का फीस भरा, वो पैसों से वो घूमने गया, वो पैसों से वो मूवी देखने गया। बिजनेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिजनेस के लिए money is going out which is taken by the owner. So owner is the receiver, cash goes out. Underline owner, underline cash. Drawings account, cash account. Drawings account personal, cash account real. Debit the receiver 350. Credit 350. Any doubt anyone in this? गलती से भी गलती मत करना, इसमें ऐसा मत लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकर्ड। ये लाइफ है, लाइफ। सो इट इज अ एक्सपेंस ऑफ द ओनर, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। अगर सिर्फ ऐसा दिया होता पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 350, तो फिर क्या आता? बिजनेस का इंश्योरेंस भरा है, सो इंश्योरेंस एक्सपेंस इनकर्ड एंड कैश goes out. Paid fire insurance premium, vehicle insurance premium, ऐसा कुछ भी दिया है तो वो बिजनेस का खर्चा है। अगर लाइफ दिया है तो वो ओनर का खर्चा है। सो ओनर इज द रिसीवर, कैश goes out. I hope I am loud and clear. Okay, now paid. हेलो सर, हाँ, પેલો ઇફેક્ટ એના ખબર પડી 11th માં। એક તો હું ક્યારનો કહી રહ્યો હતો માનવ કે લાઈફ કોની હોય? ઓનર નહીં હોય। તો ઇન્સ્યોરન્સ અગર મેં લાઈફ નો ભર્યો બિઝનેસ માંથી, તો બિઝનેસ તો એવું કહેશે ને કે આ મારું થોડી ને ઇન્સ્યોરન્સ છે, આ તો ઓનર તારું ઇન્સ્યોરન્સ છે, તો આ પૈસા તો તું લઈ જાય છે, તારે ભરવાના હોય, મારે થોડી ને આપવાના હોય। ખર્ચો થોડી છે, તો તારો ખર્ચો છે। તો બિઝનેસ માંથી પૈસા જઈ રહ્યા છે, પણ એ ઓનર પોતાના પર્સનલ ખર્ચા માટે લઈ જઈ રહ્યો છે, એટલે ઓનર ઇઝ ધ રિસીવર। ઓકે, હા, ખબર પડી। ओके, नाउ 12th का इफेक्ट है, मैं बताऊंगा तुम सबको। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पेड 1500 दीप ठक्कर पेन ना खईस। ओके, पेड 1500 टू चंद्रा फॉर सैलरी, तो इफेक्ट ए आएगा, चंद्रा इज द रिसीवर। No. No. No, sir. Is wrong. No. Is wrong. Effect क्या आएगा? सैलरी एक्सपेंस। तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करो। गलतियां मत करना प्लीज इन एग्जाम। पेड 1500 टू चंद्रा फॉर सैलरी, यानी हम कभी किसी को बोल रहे कि तेरा पगार ले, इसका मतलब है उसने काम कर लिया तभी वो पगार मांग रहा है। तो सर्विस मिला और पैसा दिया, तो खर्चा हुआ, सो सैलरी एक्सपेंस इनकर्ड।
सर वो अभी आप इसके पहले वो कुछ समझा रहे थे ना इंश्योरेंस वाला, वो कनेक्टिविटी नहीं थी तो पता नहीं चला, फिर से समझा सकते हो? खत्म होने के बाद मैं समझाता हूँ। ओके, ये चंद्रा पता चला तुम्हें? चंद्रा, नहीं पता चला। चंद्रा भी अटक गया। ओके, वो चंद्रा, 11 वाला पता चल गया, ये चंद्रा वाला नहीं पता। हाँ मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा? पेड 1500 टू चंद्रा फॉर सैलरी। वो तो हमने सैलरी दी ना, तो कैश गोज आउट और उसको एक्सपेंस दिया। चंद्रा का नाम क्यों नहीं आएगा? नाम આપ્યું છે नहीं ને, पता તો પણ નામ કેમ નહીં આવે? કે એને કેશ આપી દીધું જ. એવું નહીં, નામ એટલે નહીં આવે કેમ કે જ્યારે મેં પગાર ચૂકવ્યો એનો મતલબ છે કે કામ એને કરી લીધું છે એટલે મને સર્વિસીસ મળી ગઈ છે અને મેં એને રૂપિયા આપ્યા છે, એટલે સર્વિસ કમ્સ ઇન એટલે સેલરી એક્સપેન્સ ઇનકર્ડ. બરોબર? ઓકે, એટલે આમાં અને મેં પર્પલ કલર કેમ યુઝ કર્યો છે કેમ કે કેમ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક્ઝામમાં ચંદ્રાનું નામ લખવાનું નથી. એવું કેમ નથી લખવાનું? કેમ કે સર્વિसेस वी हैव रिसीव्ड एंड वी आर गिविंग कैश. हम नाम कब लिखते हैं? हम नाम लेना बाकी हो, पैसा पैसा लेना बाकी. क्या लेना बाकी? का लेन देन बाकी हो तो ही हम नाम लिखते हैं. इज दिस क्लियर? So Yes. salary expense incurred, cash goes out. एक बार मेरा ये खत्म हो जाने दो सारे ट्रांजैक्शन, फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस वाला, इनकम टैक्स वाला फिर से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? ओके. Purchase goods of rupees 8,000 from Surya. Now ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है? क्रेडिट. क्रेडिट. क्रेडिट है. कैसे पता चला? सर सूर्या नाम दिया है ना. दिया है ना. दिया है, और नाम तो ऊपर चंद्रा नाम ऊपर भी दिया था, पर वहां पे वर्ड था पे, यानी कैश एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पे कैश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. समझ में आया मानव? हाँ सर, खबर पड़ी. શું ખબર પડી? સર કેમાં કેશ એક્સચેન્જ થતો નથી એટલે એમાં ક્રેડિટ નહીં આવે. એટલે એમાં ક્રેડિટ આવશે. આ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે કેશ? હા, આડું ક્રેડિટ છે સર. ક્રેડિટ છે કેમ કે આમાં નામ પણ આપ્યું છે અને કોઈ નામ પણ છે. પૈસાની લેન દેનનું આપ્યું નથી. નથી. હા. આપણે ગુડ્સ ખરીદ્યા પણ રૂપિયા નથી આપ્યા, એટલે આપણે એ વ્યક્તિનું નામ આપણા ચોપડામાં બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં લખવું પડશે. કોનું નામ લખશું આપણે? જેની આગળથી ગુડ્સ ખરીદ્યા, એટલે પહેલું ઇફેક્ટ છે ગુડ્સ કમ્સ ઇન goods comes in અને effect B, who is the giver of goods? So Surya is the giver. Underline goods comes in, Surya, underline Surya. Goods comes in, what's the name of the account? परचेस. परचेज अकाउंट. Purchase account. And Surya account. Purchase real, Surya personal. Debit what comes in 8,000. Credit what goes out 8,000. Paid 300 for telephone expense. इफेक्ट ए क्या आएगा? टेलीफोन एक्सपेंस इनकर्ड. टेलीफोन एक्सपेंस इनकर्ड.
टेलीफोन expense incurred, cash goes out. अंडरलाइन करो, टेलीफोन एक्सपेंस टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा। अच्छा, ऊपर सैलरी वाले का इफेक्ट सब बाकी रह गया है। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी। बढ़िया, हम कर देते हैं उसको। इसके बाद नॉमिनल, रियल, डेबिट, क्रेडिट, 300, 300, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी नॉमिनल, कैश रियल, डेबिट, क्रेडिट, 1500, 1500। Paid 100 for postage and telegram expense. So post and telegram, अब ये telegram obsolete हो गया है। टेलीग्राम को गुजराती में कहते हैं तार। It was a system where while using some codes, messages used to be transmitted from one location to another in post office. But recently टेलीग्राम हर एक पोस्टल डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, बिकॉज मोबाइल फोन आ गए, एसएमएस आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तो अब टेलीग्राम ऑब्सोलीट हो गया है। तो ट्रांजैक्शन में दिया है वी आर डूइंग, पर रियल लाइफ में अब टेलीग्राम एक्सपेंस आने वाला नहीं है। सो पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सपेंस incurred, cash goes out. टेलीग्राम तो अभी एक ऐप का नाम है, ओके। टेलीग्राम इज नाउ अ ऐप, और लोग वो टेलीग्राम पे जाके कम्युनिकेट करते हैं और वहां पे मूवीज भी देखते हैं डाउनलोड करके। टेलीग्राम expense account, but actual telegram was something very different, and cash account. पुराने मूवीज में यू कैन, इफ यू वॉच ओल्ड मूवीज, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हो और तुम उनके साथ बैठ के देख रहे हो, तो उसमें ऐसा आता है कि तार आया है, टेलीग्राम आया है, और वो टेलीग्राम में लिमिटेड मैसेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम भर भर के पेजेस भेजो, सिर्फ इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट मैसेजेस आर ओनली रिटर्न, कि ये बीमार है, ये मर गया, इसका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी। इतने शॉर्ट एंड मैसेज होते, शॉर्ट मैसेजेस, ओके। उसके लिए टेलीग्राम यूज होता था। रक्षाबंधन है तो उसके साथ भेज दिया along with the money के रक्षाबंधन wishes, ऐसा सब, okay, birthday wishes. So post and telegram account is nominal and cash account is real. Debit, credit, 100, 100. Received commission 700. अब ये हमने कितनी बार ये ट्रांजैक्शन किया है? हाथ में क्या आया? कैश। तो कैश कम। नाउ कैश क्यों आया? क्योंकि हमने कमीशन इन कमांड, नाम है कमीशन, कमीशन इनकम ऑन, अंडरलाइन करना, कैश कमीशन कैश अकाउंट, commission account, cash account is real, commission account is nominal,
debit, credit, $700, 17 is very interesting. Tell me, what is a bank advice? बैंक एडवाइस यानी क्या? क्या ये बैंक हमें सलाह दे रहा है, सलाह सूचन कर रहा है? लोग देते हैं ना, अभी ये तुम्हारी एज में तो बहुत लोग तुम्हें सलाह देते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, एल्डर ब्रदर, सिस्टर्स, नेबर्स, जो मिले सलाह देते हैं। और वो सलाह कम पड़ जाए तो लोग YouTube पे भी वीडियोस देखते हैं जहां पे उनको सलाह मिलती है और मोटिवेशन मिला। तो बैंक एडवाइस यानी बैंक क्या तुम्हें सलाह दे रहा है? सेंट एडवाइस तो सलाह आपी तमने सलाह मोकली? नो। ध्यान दो, ध्यान दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जमाना था, यू अग्री, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, ईमेल सिस्टम नहीं था। अब ध्यान देना प्लीज, तुम्हारा पैसा बैंक में है। अब बैंक को अगर कोई भी चार्जेस तुमसे रिकवर करना है तो बैंक क्या तुम्हें ऐसा बोलेगा कि ये पैसा भर के जाओ? ऑलरेडी उनके पास वो पैसा है ही तुम्हारा, तो बैंक तुम्हारे पैसे, तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें से कुछ पैसा निकाल लेगा। यू अग्री विथ मी? और तुम्हारा बैलेंस कम कर देगा। बट पैसा किसका था बैंक में? हमारा। तो अगर बैंक हमारे पैसों में से कुछ निकाल रहा है तो बैंक को हमें ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। मेरा पैसा है तो बैंक क्या करेगा? बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर दिया मेरे अकाउंट से, पर बैंक एज अ कम्युनिकेशन मुझे एक लेटर भेजेगा, एक पीस ऑफ पेपर भेजेगा जिसका नाम है बैंक एडवाइस। इज दिस क्लियर? तो वहां पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? वी आर डिडक्टिंग रुपीज सो एंड सो, कितना है? ₹30 from your account number so and so towards bank charges. Please make a note of it. Understood? Understood? आज की तारीख में बैंक क्या करता है? अभी अगर बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट कर दिया तो तुम्हें एक तो SMS तो आ ही जाता है, पर चेक अगर डिसऑनर होता है तो वो डिसऑनर चेक के साथ बैंक अभी भी एक स्लिप भेजता है जहां पे लिखा होता है कि ये रीजन से चेक डिसऑनर हुआ और इसके लिए इतना चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किया। इन शॉर्ट, बैंक जो तुमसे कम्युनिकेट करता है, ओके, रिगार्डिंग द अमाउंट व्हाट दे हैव डिडक्टेड इज नोन एज बैंक एडवाइस। समझ में आया? बैंक एडवाइस, ध्यान दो, बैंक एडवाइस is a proof or a evidence, that piece of paper, that the transaction has taken place. बैंक ने पैसा ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, बैंक हैज ऑलरेडी डिडक्टेड, फिर उसने तुम्हें ये लेटर भेजा। नाउ ये ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। Yes. Is this clear? Yes. Bank sent an advice is a economic transaction. गलती से भी गलती मत करना, ठीक है? Bank advice is a proof that transaction has taken place. तो बैंक ने तो उसको रिकॉर्ड कर दिया, बट हमें भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Is this clear? समझे गए बद्दा ने? थोड़ा इंग्लिश ज्यादा पढ़ लिया मैंने इसके लिए। ओके, नाउ लेट्स गिव द इफेक्ट। बैंक सेंट एंड बैंक एडवाइस फॉर बैंक चार्जेस, એટલે બેંકમાં बैंक चार्जेस નો ખર્ચો થઈ ગયો, so we write effect A, bank charges
bank charges incurred. And बैंक बैलेंस डिक्रीज, पैसा हमारे बैंक अकाउंट से गया तो बैंक इज द गिवर. तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि सर बैंक को तो पैसा मिल रहा है, हमें ऐसा नहीं देखना है. हमें क्या देखना है? बैंक बैलेंस गिरा तो बैंक इज द गिवर, बैंक बैलेंस इंक्रीज तो बैंक इज द रिसीवर. अब बैंक इज द गिवर, उसने किसको दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. बैलेंस गिर गया तो बैंक इज द गिवर. So bank charges account, बैंक अकाउंट अंडरलाइन कर लेना बैंक चार्जेस को और बैंक को. नॉमिनल, पर्सनल, डेबिट, क्रेडिट. डेबिट 30, क्रेडिट 30. Got it? Yes, sir. Okay. Now I'll explain you the concept of life insurance premium. This sum is over. There were 17 transactions. Let me confirm it. Yes. Tomorrow we'll be doing the 8th one. Okay, now pay attention all. Now, we have owner and we have business. In accounts, we say owner and business are two separate persons. You agree with me on this? Yes. Yes, sir. Separate person. Now, owner invest money in the business, इसको हम कहते हैं capital. And anything with the owner withdraws, उसको हम कहते हैं drawing. Drawing. ये ओनर और बिजनेस का रिश्ता है. नाउ ओनर क्या करता है? ओनर सोल प्रोप्राइटर में जितना भी उसका पैसा था सारा उसने बिजनेस को दे दिया बिजनेस करने के लिए. बिजनेस चालू हो गया, पर अब उसको उसके पर्सनल एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि घर खर्च. सो ग्रोसरी के लिए उसको खर्चा चाहिए, फिर उसको ट्यूशन फीस के लिए खर्चा करना पड़ता है, फिर डेली अदर एक्सपेंसेस के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है. तो वो क्या करता है? अब सारा पैसा तो मेरा बिजनेस के पास है, या बिजनेस के कैश बॉक्स में है, या बिजनेस के बैंक अकाउंट में है. तो मैं क्या करूंगा? ये सब खर्चा करने के लिए अगर कैश में खर्चा करना है तो बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश लेके चला जाऊंगा. अगर मुझे किसी को चेक देना है तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से मैं चेक दूंगा. ऐसा कितनी बार होता है कि पेरेंट्स अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपने बच्चों का फीस यूविल में भरते हैं. तो बैंक बिजनेस का है, पैसा यूविल को गया, पर बिजनेस में रिकॉर्ड होगा. तो ये बिजनेस क्या यूविल को जानता है या बिजनेस ओनर को जानता है? बिजनेस किसको जानता है? ओनर को. बिजनेस ओनर को जानता है. तो ओनर उसका जो भी खर्चा करेगा जो पर्सनल है, जैसे कि उसका लाइफ का इंश्योरेंस भरा, उसके बच्चों का ट्यूशन फीस भरा, उसने जो भी खर्चा किया पर्सनल, वो कहीं घूमने चला गया परिवार के साथ, अब चेक उसने दिया था ट्रैवल एजेंट को अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से,
तो क्या वो बिजनेस का खर्चा हुआ या ओनर का खर्चा हुआ? ओनर का। ओनर का। ओनर के घर का बिजली का बिल ओनर ने अपने बिजनेस में से चेक दिया MGVCL को, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये खर्चा है ओनर का। पर पैसा कहां से जा रहा है? पैसा जा रहा है बिजनेस से। इसके लिए ही तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, अदरवाइज हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं पड़ता। यू अग्री विथ मी? यस। Yes, Yes. sir. Now, बिजनेस के लिए मनी गोज आउट, हु इज द रिसीवर? ये किसके इलाके में चला गया? ओनर। तो ये पैसा ओनर इज द रिसीवर। बैंक अकाउंट से दिया तो बैंक इज द गिवर, अगर कैश दिया तो कैश गोज आउट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, ओनर ने बिजनेस में से 20,000 विड्रॉ किया, तो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? फिर ये 20,000 से उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, घर का हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसने शॉपिंग किया। ये तीनों हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि नहीं रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे। नहीं करने पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल है। पर्सनल खर्चा है, तो उसने सिर्फ 20,000 रुपए ओनर जब लेके चला गया, फिर ओनर उसका कुछ भी करे, बिजनेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आया? सर अगर बिजनेस के काम से ओनर को कहीं बाहर जाना पड़े तो वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा या ओनर का? तो बिजनेस का खर्चा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का भी खर्चा हो सकता है। जैसे ओनर गया दूसरा सिटी कुछ खरीदने के लिए, तो वो क्या उसका पर्सनल एक्सपेंस है? वो हैप्पी हॉलिडे करने गया है, वो गया है बिजनेस के काम से, तो वो बिजनेस का खर्चा हुआ। तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालूंगा तो उसमें से ये खर्चा भी मुझे अकाउंट करना पड़ेगा ना, तो ही मुझे सही प्रॉफिट पता चलेगा। समझ में आया ये? तो यस किसका डाउट था? ये तिथि का? यस सर हाँ, समझ में आ गया तुम्हें ये? यस ओके। अब इलेक्ट्रिसिटी है, तो मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी मेरा पर्सनल खर्चा है। अगर मैं मेरे बिजनेस से पे करूंगा, ट्रांजैक्शन दिया है, ओनर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज हाउस, तो यहाँ पे बिजनेस का खर्चा नहीं है। एक्सपेंस इज नॉट इनकर्ड फॉर द बिजनेस, expense is incurred for the owner, it is personal expense। तो personal expense जहां पे भी है we call it drawings। is this clear? ऐसा ही एक कंसेप्ट है फॉर इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो ये इनकम टैक्स किसको भरना है? ओनर को भरना है या बिजनेस को भरना है? ओनर को भरना है। तो इनकम टैक्स भी अगर हमने पे किया है तो ओनर इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चल गया? ओके। अब आज का सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने, सो जस्ट डोंट गो अवे, जस्ट वेट अ व्हाइल। अब तुम्हें जो होमवर्क दिया है उसमें मैंने चैप्टर 1 जो पूरा थियरी है, तो टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करना, सारे कंसेप्ट्स मैंने समझाए हैं वो बराबर समझ के होमवर्क करना। इज दिस क्लियर? Along with this, मैंने तुम्हें 2 इफेक्ट का प्रैक्टिस दिया ही है, तो वो जो सम आई थिंक 1 to 20 ट्रांजैक्शन सम नंबर 5 था, तो वो तुम्हें करना है। नाउ 2 दिन में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ओके, इसके जो भी डाउट डिफिकल्टी है, हमारे ऑलमोस्ट रोज सेशन है एक्सेप्ट वेडनेसडे, तो कोई भी डाउट डिफिकल्टी है, नहीं पता चला लैंग्वेज, तो मुझसे क्लैरिफाई कर देना। अब
मैं थर्सडे से चालू करूंगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्रीज। नाउ यू विल से कि सर नेक्स्ट चैप्टर तो जीएसटी है, तो आप क्यों जर्नल एंट्री चालू कर रहे हो? इसके लिए क्योंकि जीएसटी रिलेटेड जर्नल एंट्री जब मैं कराऊंगा तब मैं तुम्हें जीएसटी का कंसेप्ट समझाऊंगा, तब वो लेक्चर तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें खुद इंटरेस्ट आता है कि सर हमें तो जीएसटी देखना है, तो मेरा लेक्चर ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम वो देख सकते हो। एक ही लेक्चर है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सर हो गया है। देख लिया तुमने? हाँ वेरी गुड। जिन्होंने देख लिया वेरी गुड, नहीं देखा देख लेना। नाउ वो मैं फिर से कराऊंगा, नॉट टू वरी। नाउ जर्नल एंट्री के लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने बनाया है, तो तुम लोगों को कल 10 बजे के बाद से लेके अप टू थर्सडे बिफोर माय लेक्चर स्टार्ट्स तुम वो मटेरियल क्लास से प्लीज कलेक्ट कर लेना। इज दिस क्लियर? ओके सर। यस ओके सर। कलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को डाउट है तो वो वेट कर सकता है, बाकी सब जा सकते हैं। बराबर लेक्चर देखना। ओके, बाय बाय।